अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे ओपन योर फॉर दिस बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 97 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। Electric field lines. The concept of an electric field demonstrates how a charged object affects other nearby charged object. The electric field is a vector field, which means it has both magnitude and direction. The direction of the electric field at any point is the direction in which a positive test charge would move if placed at that location. Here we will explain and show the electric field pattern for three common situations. Number 1. Around a point charge. Around a point charge, the electric field is radial, extending outward in all directions. For a positive charge point, the electric field lines radiate outward, indicating that a positive test charge placed nearby would be repelled. In contrast, for a negative point charge, the electric field lines point inward, showing that a positive charge test charge would be attracted toward it. This reflects the repulsive force around the positive charge and the attractive force around negative charges. B. Around a charge conducting sphere. A charge conducting sphere distributes its charge evenly on its surface, and the electric field around it behaves similar to that of a point charge, but only outside the sphere. Outside, the electric field lines are radial, radiating outward for a positively charged sphere and inward for a negatively charged one. Inside the sphere, the electric field is zero because the charges on the surface rearrange to cancel any internal electric field. C. Between two oppositely charged parallel conducting plates. When two large parallel conducting plates are given equal and opposite charges, a uniform electric field is created between them, commonly used in capacitor. The electric field lines point from the positively charged plate to the negatively charged plate, and they are parallel and equal spaced, showing a uniform electric field. This uniformity means the electric field has the same magnitude and direction at all points between the plates, which is due to the plates being charged and close together, minimizing edge effect. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया डैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपकी बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई, मैं आपको उसकी डेफिनेशन राइट करवा रही हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन आपके पेपर में आ सकती है, इसलिए आप इसकी डेफिनेशन पहले लिख लें, ठीक है। Electric field lines are imaginary lines that show the direction and strength of an electric field around a charge. दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप लोग लिख लो मैंने क्या कहा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, IMAGINARY, imaginary lines that show the direction and strength of an electric field around a charge. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटे इमेजरी लाइंस होती हैं, यानी कि एक्चुअली ये लाइंस नहीं होती, हम जस्ट इमेजिन कर रहे होते हैं। ये लाइंस हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करती हैं, ये हमें बताती हैं डायरेक्शन और स्ट्रेंथ किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि चार्ज के इर्द गिर्द प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन हमें पता चलेगी पहली चीज़, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम बात करें ना कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपके पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं बेटे ये हमें क्या बताती हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ये हमें डायरेक्शन बताती हैं, ठीक है। क्या बताती हैं, डायरेक्शन बताती हैं। किस तरह से डायरेक्शन हमें पता चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बेटे ये हमेशा स्टार्ट होंगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड अप कहाँ पे होती हैं, नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या होगी, स्ट्रेंथ। क्लोजर द लाइंस स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि लाइंस जो हैं वो जितनी क्लोज होती हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी। जितनी लाइंस के दरमियान में गैप ज़्यादा आता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या है कि दो फील्ड लाइन जो हैं दे नेवर क्रॉस ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी बेटे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है।
ये बात आपने रखनी है। दे, और अगली इसकी प्रॉपर्टी एक और आप लिख सकते हो, दे आर स्मूथ कंटिन्यूस कर्व, यानी कि इनके शार्प बेंड नहीं होते, ये बेंड नहीं करती, बल्कि इनके स्मूथ कंटिन्यूस जो हैं वो कर्व होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप की शेप्स जो हैं ये शो करेंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं किस तरह की शेप्स होंगी, वो सारी शेप्स 2-3 आपकी बुक में यहाँ पे बताई गई हैं बेटे, उन्हीं को मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी। अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस दैट शो डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये एक्चुअल में लाइंस नहीं होती, ये जस्ट इमेजरी लाइंस होती हैं। हम इनको सिर्फ और सिर्फ तसव्वुर करते हैं, इमेजिन करते हैं, और इन लाइन से हमें बेटे स्ट्रेंथ पता चलती है और डायरेक्शन पता चलती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई, ठीक है, वो भी आप लोग राइट कर लो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है। क्या है ये, वेक्टर फील्ड है। ये क्यों वेक्टर फील्ड है, बिकॉज इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, और हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न हैं बेटे, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पैटर्न जो आपकी बुक में गिवन है, डेट इज़ अराउंड अ पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किस तरह की होंगी। ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियल होगी, यानी कि दे एक्सटेंड आउटवर्ड, वो आउटवर्ड जो है वो मूव करेंगी। ठीक है, और ऑल डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बेटे प्रोड्यूस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो रेडिएट करती हैं इन आउटवर्ड। अगर ये आउटवर्ड मूव करेंगी तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि देखो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो इनवर्ड मूव करेंगी या वो आउटवर्ड मूव करेंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटे आउटवर्ड रेडिएट करती हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा चार्ज है वो क्या है, डैट इज़ पॉजिटिव। क्या चार्ज है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो नियर बाय चार्जेस हैं वहाँ पे रिपेल हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर हमारा जो सेंटर वाला चार्ज है, ठीक है, जो भी हमारा टेस्ट चार्ज है वो अगर नेगेटिव होता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, और इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी। अच्छा देखो इस डायग्राम्स की तरफ आओ, आपको ज़्यादा अच्छी क्लियर समझ आती है कि आपको दो डायग्राम नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जो चार्ज है ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये जो लाइंस हैं दे आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा यहाँ पे जो लाइंस की डायरेक्शन है बेटे ये आउटवर्ड है। देखो एरो नज़र आ रहा है ना आपको, इस डायरेक्शन में एरो है ना, इसका मतलब है इनकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो टेस्ट चार्ज है डैट इज़ पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इनकी डायरेक्शन बेटे क्या होगी, इनवर्ड होगी। क्या होगी, इनवर्ड। यहाँ पे एरो देखो तो वो इस डायरेक्शन में एरो है, इसका मतलब है इनकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड होती है इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है डैट इज़ नेगेटिव। इज डेट क्लियर। ये छोटी सी एक दो पॉइंट्स थे जो आपने यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, और जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इनवर्ड मूव करती हैं इसका मतलब है कि हमारा टेस्ट चार्ज जो है पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं अराउंड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और अगर नेगेटिव होगा तो जो फोर्सेस होंगी वो कौन सी होंगी, अट्रैक्टिव होंगी नेगेटिव पे, और अगर पॉजिटिव होगा तो जो फोर्सेस होंगी वो कौन सी होंगी बेटे, रिपल्सिव होंगी। ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ पे याद रखने हैं। दूसरा यहाँ पे जो हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बेटे, डैट इज़ अराउंड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, कोई भी सर्कुलर शेप। ठीक है, अगर हमारे पास सम वॉट सर्कुलर, कंप्लीटली सर्कुलर नहीं होती, ठीक है, इस तरह की शेप होती है, इसको हम स्फीयर कहते हैं। किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है चार्ज को इवनली। इवनली का मतलब होता है इक्वली, हर डायरेक्शन में जो है वो इवनली जो है वो
डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये चार्ज को, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे बेटे बनेंगी वो उनका बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है एज दैट ऑफ पॉइंट चार्ज जो हमने ऊपर पढ़ा था। यहाँ पे भी डायरेक्शन देखो ना, तो वैसे ही डायरेक्शन है। और यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है वो क्या है, अगर आप इस डायग्राम पे देखो, ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। और जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, हर तरफ पहले तो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी। दूसरी चीज़ यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखो तो आपको क्या नज़र आ रही है कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पे किस तरह की है। 2 पॉइंट्स हैं। पहली बात क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं अराउंड द स्फीयर। सेकेंड मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है, ये एरो देखो, एरो की डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो क्या है बेटे, आउटवर्ड है, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर है। लाइन जो हैं दे आर रेडियल हैं, आउटवर्ड हैं। और अगर इसी का ऑपोजिट कर लो, अगर ये स्फीयर हमारा नेगेटिवली चार्ज होता तो फिर डायरेक्शन क्या होनी थी, फिर डायरेक्शन इनवर्ड हो जानी थी, ठीक है। तो इधर भी आपने बस ये सिर्फ और सिर्फ 2 मेन पॉइंट जो हैं वो याद रखने हैं कि अगर टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, नेगेटिव होगा तो इनवर्ड डायरेक्शन होगी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इवनली जो है बेटे अराउंड द स्फीयर जो है वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पैटर्न आता है। थर्ड पैटर्न कहाँ है, जब हमारे पास 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हों, ठीक है। 2 प्लेट्स होनी चाहिए, दोनों प्लेट जो हैं वो पैरेलल होंगी और कंडक्टिंग होंगी। कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा होगा, चार्जेस का फ्लो हो रहा होगा, कंडक्शन हो रही होगी, ठीक है। प्लेटेड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगी और इक्वल होंगी, लेकिन इनके ऊपर जो चार्जेस होंगे बेटे वो क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। एक के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, एक के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ होगा बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो पॉइंट करेंगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द, यानी कि देखो कहाँ से अराइज हो रही हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव प्लेट से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है, और नेगेटिव पे आके ये क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। और ये इक्वल है हर जगह पे, पूरी जो आपकी प्लेट्स हैं उन पे ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इक्वल है। और ये क्या शो करती है, दिस शो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो यूनिफॉर्मिटी है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और जो मैग्नीट्यूड है बिटवीन द प्लेट्स, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट हों चाहे आप यहाँ से स्टार्ट हों, हर जगह पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट बिटवीन द प्लेट जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। बस आपने यही यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जो याद करने थे, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई इतनी ये मुश्किल डायग्राम्स नहीं है कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कह रहे हो तो मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इसमें कोई ऐसी चीज़ हमने वैसे पढ़ी नहीं है, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको इसके मेन पॉइंट दोबारा से रिकॉल करवा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा बेटे, मैं आपको बेटे ये सारे एक दफ़ा पॉइंट्स की फॉर्म में जो है इनको राइट करके दिखाती हूँ ताकि कंसेप्ट आपका जो है यहाँ पे फर्दर क्लियर हो जाए। हम जो टॉपिक अभी स्टडी कर रहे हैं डैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे मैं हेडिंग दे लेती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन नहीं दी गई, लेकिन आपके पेपर में इसकी डेफिनेशन आएगी, ठीक है। जिन चीज़ों की डेफिनेशन यहाँ पे मिसिंग है बेटे वो मैंने साथ साथ आपको राइट करवाई है। दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, किसी बच्चे की अगर रह गई है तो वो दोबारा राइट कर ले जिसने अभी ज्वाइन किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दे आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, IMAGINARY, इमेजिनरी लाइंस डैट शो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, डैट शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ of an electric field around a charge, ठीक है, क्लियर है। जिन बच्चों से नहीं लिखी जा रही थी या जिनकी मिस हो रही थी बेटे, अब आप लोग यहाँ से देके राइट कर लें। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने इसकी पढ़ी प्रॉपर्टीज़, ऐसी था। अब मैं
आपको पूरे नोट की फॉर्म में बता रही हूँ, ठीक है। अगर नोट आता है तो कैसे आपने लिखना है। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई, इसकी डायरेक्शन बताई। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई, इसकी स्ट्रेंथ बताई। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, नो क्रॉसिंग, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई आपको, इसकी नो शार्प बैंड्स, नो शार्प बैंड्स, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी, इट गिव मैग्नीट्यूड एज वेल, ठीक है। डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। क्लियर। ये सब वो चीज़ें हैं, वो पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बुक में नहीं है और मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजरी लाइंस दैट शो द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। ये इमेजरी लाइंस हैं जो कि हमें किसी भी चार्ज के अराउंड डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। प्रॉपर्टीज़ में मैंने पहले क्या बताया, डायरेक्शन के, इनकी डायरेक्शन क्या होती थी बेटे, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग लिख लो इसको खुद। मैंने बताया था दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और एंड कहाँ होती हैं, नेगेटिव पे, ठीक है, हमेशा। फिर हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, इनकी स्ट्रेंथ। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के क्लोजर होंगी, उतनी स्ट्रेंथ जो है इनकी ज़्यादा होगी। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं इनका क्रॉसिंग नहीं होती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, बल्कि क्या होती हैं, ये हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में रहती हैं, ठीक है। छोटी छोटी डायग्राम्स भी मैं यहाँ पे बनाई जा रही हूँ ताकि आपको पता चल दे। फिर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे कोई भी बेटे इस तरह का शार्प बैंड नहीं होता, ठीक है। और लास्ट में मैंने क्या बताया था कि क्योंकि ये वेक्टर का है तो ये हमें मैग्नीट्यूड भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा बेटे, हमने 3 डिफरेंट इसके पैटर्न पढ़े। क्या पढ़े, पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग दे सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स, ठीक है। हमने 3 डिफरेंट पैटर्न जो हैं वो यहाँ पे स्टडी किए, ठीक है। नंबर 1 पैटर्न हमने क्या पढ़ा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, फिर हमने सिंगल नेगेटिव चार्ज देखा, और फिर हमने डाइपोल, यानी कि अगर 2 पोल्स हों, पॉजिटिव प्लेट हो, नेगेटिव प्लेट हो, देन हमने उसको भी अच्छी तरह से पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि अराउंड अ पॉइंट चार्ज, अराउंड अ पॉइंट चार्ज, अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अभी मैं मेन पॉइंट्स दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे हमने 2 चार्जेस पढ़े, एक हमने क्या देखा, पॉजिटिव, और एक हमने यहाँ पे क्या देखा, नेगेटिव, ठीक है। इस केस में जो डायरेक्शन होगी बेटे, ऐसे पहले तो इक्वल जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, बॉल पॉइंट ख़त्म हो रहा है शायद। नेगेटिव में भी आप लोग इसी तरह से लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है। यहाँ पे जो डायरेक्शन आपने बतानी है वो ये डायरेक्शन बताओगे, ठीक है। जो चीज़ आप बना रहे होते हैं ना उसी को आपने बस एक्सप्लेन कर देना है, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ साइंस होती नहीं है। क्या है, नेगेटिव है, इसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होगी। यहाँ पे एरो आप लोग ऐसे बनाओगे, ठीक है। ये मेन 2 पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। आगे समझ। अब इसी इन्हीं दोनों चीज़ों को हमने एक्सप्लेन कर देना है। हमने क्या करना है कि फॉर अ पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे रेडिएट आउटवर्ड, ये आउटवर्ड होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज प्लेस है वो क्या करेगा, इट वुड रिपेल, ये आउटवर्ड है। यहाँ पे मैंने एरो की डायरेक्शन ऐसे बनाई है, ये वाली, ठीक है, दिस इज़ आउटवर्ड। और यहाँ पे मैंने डायरेक्शन जो अगर आपके पास नेगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटे, इनवर्ड होगी। यहाँ पे क्या होगी, आउटवर्ड होगी। और अट्रैक्टिव फोर्स अराउंड द नेगेटिव चार्ज होगी, और यहाँ पे जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा, हमने नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़ी, अराउंड अ चार्ज
कंडक्टिंग स्फीयर। इस केस में आपने कोई भी स्फीयर लिया, सपोज दिस इज अ स्फीयर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कैसी बनेंगी, 1 2, आपने 4 लाइंस लगानी है और इनके सेंटर में भी एक एक लाइन लगा देनी है, ठीक है। इस तरह से ये डायग्राम आप ड्रॉ करोगे। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है। ऐसी डायरेक्शन बनानी है। क्लियर बेटे, ये आप यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और आप इसी को एक्सप्लेन करोगे कि अगर हमारा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जो है अगर होता है तो यहाँ पे इर्द गिर्द इसके इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपकी आउटवर्ड होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था, बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ठीक है। मैं लिख नहीं रही, मैं जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा हिंट दूंगी, पूरी लाइन मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी। ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स होंगे हमारे पास, ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स। तो हमने क्या कहा था, सपोज करो ये 2 प्लेट्स हैं हमारी, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारी नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, ठीक है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। अगर हमारे पास 2 चार्ज प्लेट्स हैं बेटे, सपोज करें हम ये दोनों प्लेट्स पैरेलल हों और कंडक्टिंग प्लेट्स हों और इनके जो चार्जेस हैं वो इक्वल हों और ऑपोजिट हों और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो वो यूनिफॉर्म हो, देन यहाँ पे क्या होगा बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड हो जाती है, ठीक है। ये डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे ये क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो यहाँ पे क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटे यूनिफॉर्म है। इज दैट क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट जो है पैटर्न देखे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई। ये डेफिनेशन, ये प्रॉपर्टीज़ बेटे आप अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लें, ठीक है। इसके साथ ही ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी टॉपिक के एंड पे अगर आप लोग आओ, यहाँ पे अपनी बुक की तरफ आए, इसी टॉपिक के एंड पे बेटे हमें एक क्वेश्चन भी गिवन है, एक प्रॉब्लम है हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसको भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम is placed in air. Calculate the electric field at a distance of 0.5 m from the charge. K की वैल्यू गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है, R हमें पता है, हमने क्या फाइंड करना है, E फाइंड करना है, ठीक है। E इलेक्ट्रिक मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने 2 इसके जो हैं इक्वेशंस देखी थी, ये भी मैंने आपको बताई थी कि Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, सब में वैल्यूज पुट करें, उनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी। साथ आपने यूनिट मस्ट लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको भी एक दफ़ा मैं रीड आउट कर लूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑलवेज जीरो, डैट इज़ वाई पीपल इनसाइड मेटल कार्स एंड एरोप्लेन्स आर सेफ ड्यूरिंग लाइटनिंग स्ट्राइक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, किसी भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अंदर इनसाइड की बात हो रही है, वो ज़ीरो होती है। यही वजह है कि जब हम मेटल्स की कार में होते हैं या एरोप्लेन्स में बैठे होते हैं तो बेटे अगर बाय लाइटनिंग इफेक्ट हो रहा हो ना, बिजली चमक रही हो, तो हम लोग क्या रहते हैं, सेफ़ रहते हैं, ठीक है। क्योंकि उस एरोप्लेन के अंदर या कार के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 15.6 कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो फ्रीली थ्रू दैम. They have loosely bound electrons in their atomic structure which can flow easily when voltage is applied, creating an electric current.
Example of electrical conductors include metals such as copper, aluminum, silver as well as material like graphite and electrolytes. हमने क्या चीज़ पढ़ी बेटे, अभी जो रीडिंग मैंने आपको करके दिखाई, डैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। शुरू से बेटे आप लोग 5 क्लास से ऑनवर्ड, बल्कि उससे भी पहले बहुत छोटे थे तब से आप पढ़ते आ रहे हो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सारा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन अब आप पढ़े हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो कि अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कि वो वहाँ से फ्रीली मूव कर जाए। यानी कि कंडक्टर्स कहाँ हैं, जिन चीज़ों के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। कंडक्टर्स की मेन प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं दे आर लूजली बाउंडेड, ठीक है, इन देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ताकि वो ईजिली फ्रीली मूव कर सके। अगर वो टाइटली बाउंडेड होंगे तब तो उनका फ्लो उस तरह नहीं होगा। तो ये क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड होते हैं ताकि ये ईजिली फ्लो कर सकें जब वोल्टेज अप्लाई किया जाए। और जब इलेक्ट्रॉन बेटे फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, दे क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट। क्या क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। कंडक्टर्स की कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में दी गई हैं। एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स इंक्लूड मेटल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। इसके अलावा कुछ मटेरियल लाइक ग्रेफाइट और इलेक्ट्रोलाइट भी दे आर आल्सो कंडक्टर। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। Electrical insulators are material that resist or prevent the flow of electrical charges, and insulator electrons are tightly bound to their atom and cannot move freely. As a result, they do not allow electric current to pass through them. Example of electrical insulator include rubber, plastic, glass, wood, ceramic. These materials are used to block the flow of electricity and provide safety in electrical system. Experiment. To explore this concept, we can conduct a simple experiment. Build a circuit with a battery, bulb and a gap to test material. Insert object like the metal key, plastic spoon or wooden stick into the gap. If the bulb lights up, the material is conductor. If it stays off, it is an insulator. This hand-on activity turns us into electricity detective, revealing the hidden properties of everyday items. पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया कंडक्टर। कंडक्टर कौन से मटेरियल थे जो कि अलाउ करते थे इलेक्ट्रिसिटी को कि वो वहाँ से पास हो सके। दूसरी चीज़ यहाँ पे जिसकी रीडिंग मैंने अभी की है, डैट इज़ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। वो मटेरियल जो कि बेटे रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस को। सिंपल ज़ुबान में अगर बात करूँ तो क्या कि ऐसे मटेरियल जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स आर मटेरियल दैट रेजिस्ट और प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इंसुलेटर्स में क्या होता है, हम जो चीज़ कंडक्टर में पढ़ के आए ना उसी का ऑपोजिट आप कर लो। वहाँ पे क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली जो है एक दूसरे से दूर दूर थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, टाइटली बॉन्डेड हैं। जब इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होते हैं तो वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। जब वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करेंगे कि वो वहाँ से गुजर सके, वहाँ से पास हो सके, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं। इंसुलेटर की कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, वुड है और डिफरेंट टाइप के हमारे किचन में यूज़ होने वाले सिरामिक से बने बर्तन हैं, ठीक है। ये मटेरियल्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं और इलेक्ट्रिक सिस्टम में जो है एक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आपकी बुक में एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है जिससे किसी भी मटेरियल को चेकआउट किया जा सकता है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपने एक एक्सपेरिमेंट सिंपल कंडक्ट करना है। आपने क्या करना है, एक सर्किट बनाना है, ठीक है, बिल्ड अ सर्किट। सर्किट के लिए जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन से हैं बेटे, एक बैटरी, बल्ब और एक गैप, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो मेटल से बनी की लेंगे, प्लास्टिक का चम्मच, प्लास्टिक स्पून या फिर वुडन स्टिक को हमने उस गैप में लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है बेटे, वहाँ पे स्विच को ऑन करना है, बैटरी को ऑन करना है, यानी कि जो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो स्टार्ट हो और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो। अब आप गौर करो, आपने डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स गैप में लगाना है। जब आप मेटल की लगाओगे ना तो आप देखोगे आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा,
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है, जो मेटल से बनी हुई चीज़ें हैं, दे आर कंडक्टर। ये क्या हैं? कंडक्टर्स है। मेटल से बनी हुई चीज़ें कंडक्टर होती हैं ना। लेकिन अगर आप अपने गैप में प्लास्टिक से बने हुआ चम्मच रखोगे या फिर वुडन स्टिक रखोगे तो आप नोट करोगे कि जब अपना स्विच ऑन करते हो तो आपका बल्ब जो है वो ऑन नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है कि आपने जो प्लास्टिक स्पून या वुडन स्टिक यूज़ की है, डैट आर इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होने देते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल जो है वो कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल जो है वो इंसुलेटर है। ठीक है, सिंपल सी टॉपिक था, इसको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।